Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our 27th workshop of Machine Learning 02 Hero program. So today we're going to build a basic facial recognition system. I am going to split today's workshop into two pieces, and one into basic and one into advanced. Advanced तभी करेंगे अगर हमारे पास time हुआ. Because first I was just trying to make it like real-time facial detection, facial recognition, but it's going to be very hard for you guys because जब मैं काम करने बैठा, so I thought there are so many things you haven't learned yet. So that is why I just made it very simpler as time. I tried my best to make it simpler, and we'll see that in a moment. So my code is already uploaded on the GitHub. You can see there. Of course, on my repository. Let me share my screen. I'm gonna take just a moment. All right. So आज हमारा काम है facial recognition system के ऊपर, and first what we have to do, we just have to simply understand the difference. What is mean by difference is कि facial recognition में और facial detection के अंदर सबसे बड़ा क्या difference होता है? In facial detection, the most greatest you can say difference we have is कि we are just making a square on the faces. हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ ये he is a human, ठीक है ना, he or she is a human, but we cannot detect के we cannot identify कि वो कौन है, ठीक है. उसको कहते हैं facial recognition system. एक होता है facial verification system, जैसे हमारे मोबाइलों के अंदर होता है, that we open our mobile and they recognize our face and they verify. That is faster because उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि हाँ ये वाला बंदा है या नहीं है, बस उसमें ये काम होता है. That is why it's perform faster. But when we are having multiple people on train and model with facial recognition system, so it just takes some time. और मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. It depends on your computing hardware as well. आपका computing hardware कौन सा है? Today we are of course gonna work on the one of the great graphic card which is NVIDIA K100 Tesla. तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है because we are working on Colab and we have to work on GPU. If you're gonna work, if you're not gonna work on GPU, some cells may gonna occur a problem because I have implement this code for a CUDA based programming. और जहाँ तक मुझे याद है कि face recognition is requires CUDA cores. That is not acceptable. Face recognition की library है. So as far I know, it requires CUDA cores. That library is not acceptable directly onto the CPU. So let's just see the face recognition system. हमें मतलब समझ में आ गया that what is the difference between there. All right. So first what you have to do, you have to install this library, this module. ठीक है, आप लोग को install नहीं होगा, ये मेरे पास install है. और just what we have to do, we have to install this. जो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें extra install होती हैं like dlib, pillow, numpy, सारी useful है. numpy अगर आपकी पहले से ही तो लिखा आ जाएगा requirement already satisfied. ठीक है, यहाँ पे हमारा फेस रिकग्निशन भी यहाँ पे आ गया, मॉडल्स अलग आ गए, डी लैब, क्लिक, इस सारी चीज़ें हैं. तो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना. तो देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट. All right, so since these were already installed, so I have installed it. Today again, Colab was forcing me to write this code to mount my Colab. Sometime it not. So it's already mounted, but still we're gonna run this to show you guys. तो मैं run कर दिया. If in any moment if Colab is not mounting your Google Drive by clicking here, so you can simply write this code and run it. It will open some authentication. It will redirect to your Gmail, Google account. You're gonna have to enter your password, and then simply your password will be saved and the drive will be mounted. All right. So since the drive has been mounted, what we are going to do here, we are going to train images here. Import face recognition, import numpy as np, from pale import image and image do. What is pale here? If this is exactly pillow, I guess. Yeah. तो यहाँ पे हमने from pale import image and image do, from image from IPython display import display, and then from google.colab.patches import cv2 image show. Now why we are right now doing this, it should be below this line. It will be much suitable and preferable of course. कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है हमने इसको अलग से, जब हमें पूरा CV2 import कर लिया, then why we need to import this separately? Because when we import CV2 in Colab, there is a default practice in Colab that it removes this method in that module. Because we have seen multiple times in the last year when Colab was first introduced in a in a stable version.
तो वहाँ पे जब CV2 इमेज शो हम कर रहे होते थे ना, तो कोलैब क्रैश हो जाता था जुपिटर नोटबुक। इवन तो हमारी अपनी जुपिटर नोटबुक अक्सर औकात क्रैश कर जाती हैं। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर जुपिटर नोटबुक बेसिकली। दिस इज सुटेबल फॉर कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, और यू कैन से you can work on a different IDE like PyCharm और different editors, ठीक है ना। वहाँ पे अलग से इसका वो पैनल खुलता है and then it shows the image. Sometime it conflicts the Jupyter notebook, but now it's currently working fine, so we're gonna use it in Jupyter notebook. So all right, तो यहाँ पे हमने from google.colab.patches import cv2 underscore image show कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये CV2 का ना अपना इमेज शो नहीं है, ये गूगल के अपने कोलैब का इमेज शो है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे ना CV2 अंडरस्कोर इमेज शो, हम चाहे तो ये भी कॉल कर सकते होते, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू कॉल। अगर आप अपने सिस्टम में काम करोगे तो आप इस तरह कॉल करोगे CV2, ठीक है ना। CV2 इमेज शो आई गेस, ये ऐसी कुछ होगा, देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे हमारा पूरा पूरा यही नेम है, CV2 अंडरस्कोर इमेज शो, जो कि हमारे पास कोलैब ने बना के दिया, जो इसमें सूटेबल है। So we can view this in this. All right. So by the way, this will not work on your Jupyter notebook. Maybe we have different option there, so you can see on the internet. Now, what we're gonna do? We're gonna import OS library here, and then we're gonna import data time and date time from the date time. Date time एक method है, और किस पे से import कर रहे हैं हम, date time की library में से, module में से। So for today, we are not just going to get so many samples right now, because we are already on our basic introduction. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Please guys let me know in the clear understanding that you are understanding it right. So I will not run faster. Okay. So please let me know. Actually, I hope you guys have offered your Maghrib prayer who are living in Karachi. If not, so please, that's important. First do that and then come back to class. Never mind. So यहाँ पे हमारे पास चार sentences, हमारे पास ये चार कोड जो लिखे हैं हमारे पास। Basically, we are currently just importing 4 you can say samples here for the training. अब OpenCV इतना पावरफुल है हमारे पास, इतना पावरफुल है, इतना परफेक्टली ट्रेन हुआ है, that with such a low amount of samples it usually जो है ना आपको बहुत अच्छी prediction दे देता है। बट सम टाइम इट हैपेंस कि जब हमारे पास प्रिडिक्शन हो रही होती है, कि क्या हो रहा होता है उसमें कि मॉडल जब आपने नाइट के अंदर ट्रेनिंग कर ली अपने इमेजेस की, बट इन द मॉर्निंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट द परफेक्ट इमेजरी, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो के अंदर अक्सर ओपन सीवी भी स्ट्रगल कर जाता है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल रेट्स. But currently we are training each person on a single sample, which is going to be very amazing because deep learning requires so much samples, and here we are doing what a single sample training. अब आप देखोगे कि सिंगल सैंपल के ऊपर ही ओपन सीवी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है। लेट्स सी. I encourage you guys to implement your own samples, use your own face, and upload it on your GitHub. Change some variables name so it won't strike any copyright mark. So you can upload it on your GitHub as well right now. Okay, so here we are doing a long methods. You can say it's an inefficient method. Just for explaining, हम इसको एक लिस्ट में भी बना सकते थे और उसमें उसको अपेंडिंग करते रहते हैं, but we are not doing a advanced recognition here. We are just hard coding every single thing. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह. सो here we are getting some images. अगर मैं आपको images दिखाऊं, लेट मी शो माय गूगल ड्राइव. ऑलराइट, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं. डायरेक्ट मैं उसी फाइल में चले जाता हूँ, या फिर आप मेरे गिटअप पे चले जाओ, और गिटअप पे यहाँ पर आके अगर आपको देखना हो, जाहिर सी बात है आप मेरे उस पर एक्सेस नहीं कर सकते. आई हैव प्लेस्ड ऑल द इमेजेस आई हैव मेंशन हियर. So there are 4 images. One of Elon Musk, the second is of Emma Watson, third is of Robert Downey Jr., fourth is for Sundar Pichai. मैं और भी डाल देता, लेकिन वो कल के लिए कर लेंगे. सो इफ यू कैन सी इमेजेस एज वेल, ठीक है ना. हमारे पास सारी इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं. एंड फॉर गूगल ड्राइव विच, अच्छा यहाँ नोन के अंदर हमारे पास, हमें नहीं पता कौन सी पिक्चर है, ठीक है ना. मतलब मशीन को भी नहीं पता, हमें तो पता होगा कौन सी पिक्चर है, लेकिन मशीन को नहीं पता कौन सी पिक्चर है, बिकॉज वी आर टेस्टिंग दिस फोल्डर फॉर एज अ टेस्ट सेट, जो मशीनें कभी नहीं देखे होंगे. All right, so why my Google Drive is not opening, man? इतना भी Google वालों को क्या हो गया है? All right, so let me wait. Lagging, so much lagging. All right, where is face data set? Here is we get faces.
एंड जस्ट वेट फॉर मोमेंट। तो हमारे पास देखो ये 4 पिक्चर है, एक इलन मस्क की एक पिक्चर ये नॉर्मल, एक एमा वाटसन की पिक्चर है, एक रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पिक्चर है, एक सुंदर पिचाई की पिक्चर है। हमारे पास ये 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। पैरेलली वी आर हैविंग अटेंडेंस लिस्ट डॉट सीएसवी फाइल। ये किस लिए काम आएगी? दिस इज यू कैन से यू कैन मेक इट एम्प्टी फाइल एज वेल। ये किस लिए काम आएगी? आई एम गोना शो यू। दिस इज वी आर रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू कैन से अटेंडेंस। अटेंडेंस के लिए हम साथ में एक मैंने कहा एक चीज़ और भी डाल देता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन होगा उसके थ्रू हम अटेंडेंस ही मेजर कर रहे होंगे। सो यू कैन एडवांस दिस algorithm, advance this program and can build an attendance automatic attendance system, क्या बोलेंगे उसको, आई डोंट नो। सो यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी को एफआईपी दे देते हैं, ये ना छोटा सा कोड कॉपी करा और चला दिया एफआईपी के अंदर। सो इन दैट सिनेरियो यू हैव ऑलरेडी बिन योर एफआईपी, बट प्लीज डोंट एम फॉर दिस शॉर्ट एफआईपी, बिल्ड अ बेटर वन बिकॉज आई होप यू ऑल आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर्स थी, and then in university unknowns folder we are having some these pictures, and these are some checkpoints from my collab, so just ignore these। तो ये हमने एक अननोन पिक्चर है शाहरुख खान की जो हमने अभी तक ट्रेन नहीं करी है, बट दीज टू पिक्चर्स विल बी ट्रेन, दीज टू पिक्चर विल बी ट्रेन। अब ये तो एग्जैक्टली ये पिक्चर नहीं होगी, मैं आपको दिखा दूं। वी आर हैविंग डिफरेंट पिक्चर लाइक for us we are having different picture, and we're gonna see some more complex picture as well on the internet if we are having time, and we're gonna check that if our model is predicting right or not। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने एक फेस 1 का वेरिएबल लिया है, ठीक है। मैं एक कोड समझाऊंगा डिटेल के अंदर, बाकी तीनों कोड में वही काम हो रहा है फॉर डिफरेंट पिक्चर्स। तो फेस 1 के अंदर हमने क्या किया है, वी आर यूजिंग फेस रिकॉग्निशन और मॉड्यूल जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। वी आर हैविंग इट मेथड लोड इमेज फाइल। फॉर एग्जांपल हम लोग पांडास यूज करते हैं फॉर रीडिंग आवर सीएसवी फाइल्स, फॉर रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग एन एक्सेल फाइल्स, एंड इवन तो अगर हमारी कोई फाइल ऐसी है जो कि पांडास के लिए सूटेबल भी नहीं है, किसी के लिए सूटेबल भी नहीं है, एंड वी जस्ट डोंट हैव टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ टास्क देयर, ठीक है ना। हमें जस्ट फाइल वो रीड एंड राइट करानी है, कुछ भी कराना हो, सो वी कैन आल्सो परफॉर्म फाइलिंग एज अ ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड जो है हमारा। बट सिंस वी हैव टू इनकोड थिंग्स हियर, तो हमने यहाँ पे फाइल लोड करी, कहाँ पे लोड करी, फेस 1 में करी। what it perform actually, as far I know this image, हम जो यहाँ पे इमेज जो लोड कर रहे होते हैं, इसको हम बाद में इंकोड जहाँ पे कर रहे हैं, ये इसका एक एरे मेथड या टेंसर मेथड जो भी होगा उसमें ट्रांसफर कर रहा होता है। इफ यू वांट टू सी दिस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेज आ रही है वो नंपाई एरे बन रही है। अभी हम लोग शेपिंग नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर दैट वी आर नॉट शेपिंग एनी इमेज, वी आर नॉट डिसाइजिंग एनी इमेज। तो दीज थिंग्स कैन बी कन्फ्लिक्ट इन द प्रोडक्शन के वही वैलिडेशन के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट करंटली वी डोंट हैव टू डू दिस, वी हैव टू परफॉर्म डिटेक्शन। यहाँ पे हमने इमेज लोड करी, यहाँ पे हमारे पास वो इमेज यहाँ पे नंपाई एरे में बनकर आ गई। इफ यू वांट टू सी दिस इमेज आफ्टर, तो आप अलग से फेस 1 को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। देन ये इमेज कहाँ से है हमारे पास, बता चुका हूँ कि ड्राइव से मैंने लिंक उठाया, ठीक है ना। अपनी ड्राइव पर जाके आप भी कर सकते हो। All right, so what we are doing here, this is the most important part. We are actually encoding that image we have. हम उस image को encode कर रहे हैं। Now, why we have put 0? Because we cannot have multiple or twice faces in a same picture. For example, if there is a picture in which we are having multiple faces, so in this scenario, we cannot have multiple faces right now. We are not working for that. तो उस सिनेरियो में क्या होगा हमारे पास कि हम 0 लिखेंगे, जो जो फर्स्ट डिटेक्ट करेगा उसके ऊपर ही वो जो होगा ना, मतलब वही उसी की इनकोडिंग हमारे पास फेस 1 इनकोडिंग में चली जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? It's 8:21 and we have covered pretty good so far. All right, so yes, maybe some of guys you are late. Yeah. उसका वजह आपको जो एरर आ रहा है वो मुझे पता है क्या एरर है। All right, so let me tell you every single thing. Sir, I am getting this error while importing face recognition library after installing error while calling CUDA get device. वो क्यों होगा? अगर आप कोलैब पे कर रहे हो तो सिंपल यहाँ जाओगे, रन टाइम पे, चेंज रन टाइम पे करोगे, यहाँ पे जीपीयू सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आपका नल सेलेक्ट हुआ हुआ ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि फेस रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी विदाउट कोडा मतलब विदाउट जीपीयू नहीं चलती है, ठीक है। ये अभी नॉर्मल काम के लिए मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, कल मैं सोचूंगा कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिसमें जो स्टूडेंट्स विदाउट जीपीयू भी हों वो भी ट्रेन कर सकें। बट लेट मी टेल यू सीरियसली,
if you gonna perform it without GPU, it gonna take so much time, so much time, it will sick you hard. So I prefer you guys, you are having some month before deep learning program, please buy some sort of GPU which are having at least 200 to 300 CUDA core at least, तो आप लोगों को एटलीस्ट कोड रन हो जाएगा प्रोसेसर की स्पीड पे एटलीस्ट। तो 10,000 का या 5,000 का कोई GPU खरीद के अपने पास रख लें। सो इट्स लाइक जो मैंने अपने यहाँ सेव कर लिया बाय लर्निंग इट एट फ्री, यू स्पेंड ऑन दैट GPU, तो आपको डीप लर्निंग में आसानी होगी बिकॉज देयर आर सो मेनी अपकमिंग फ्रेमवर्क्स स्पेशली योलो, फेसनेट विच रिक्वायर्ड GPU। तो वहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे? तो GPU चाहिए होगा इसको फेशियल रिकग्निशन की लाइब्रेरी को, सो जस्ट सेलेक्ट GPU फ्रॉम अबव। Alright, so Manjimin, you said it doesn't work on our Python. No, it can work on your Python. What you have to do, you have to just install face recognition, ठीक है? अब आप इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन जब आप इंपोर्ट करने के बाद इससे कुछ फंक्शंस होंगे जिसमें कूड़ा कोर चाहिए होता है उसको, ठीक है? कूड़ा कोर अगर नहीं होगा ना इसके पास तो वो वर्क नहीं करेगा। इन केस आपके पास एनवीडिया पे सॉरी आपके पास सिस्टम में कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एनी एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, और तब भी ये एरर रिटर्न हो रहा हो, तो यहाँ पे आप नेट पे जाइएगा एंड कल मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा, क्लास के फौरन बात कर दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, नहीं तो नेट पे आप जाके दिएगा रन पाइथन ऑन वेट पाइथन ऑन एनवीडिया GPU, तो यहाँ पे कमांड लाइन देगा वो, लेट मी सी दैट कमांड लाइन आनी चाहिए। सो दिस इज अ कमांड लाइन, यहाँ पे आप CUDA टूल किट इंस्टॉल करोगे और इतनी क्या क्या चीज़ें हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एस, ये तो खैर ज़रूरत नहीं है इसकी, बस यही इंस्टॉल कर लीजिएगा और दैट्स इट। लेट मी सी व्हाट इज परफॉर्मिंग हियर। तो ये काम होता है आपको फिर यूजुअली इस तरह करना पड़ता है इफ़ यू हैव एवर परफॉर्म GPU बेस्ड प्रोग्रामिंग या GPU बेस्ड डीप लर्निंग। तो मैं इसका एक सिंपल कोड शेयर कर दूंगा आपसे आफ्टर क्लास। सो इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन GPU, अगर GPU आपके पास है, मैं देख लूंगा कि कैन वी वर्क ऑन CPU GPUs एज वेल और नॉट, बिकॉज सम लाइब्रेरीज एक्चुअली डजंट सपोर्ट दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ऐसा अक्सर नहीं होता। Okay, someone else has asked that why are we not pre-processing the image in grayscale and etc. Because we are not working in advance. आज मैं simply आपको डिटेक्शन दिखा रहा हूँ, simple. OpenCV बहुत सारी चीज़ें खुद से कर लेगा। I am simply telling you the detections और डिटेक्शन कैसे हो रही है, और जो एडवांस चीज़ें हैं वो हम कल परफॉर्म करेंगे इसी को एक्सटेंड करते हुए। Then tomorrow I'm not going to explain every single minor details in Scratch. I just run towards the new things. Okay. All right, so I hope you guys have understand what we are performing here. यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी इमेज जो है फेज 2 में चली गई है, एंड इफ यू सी हियर कि फेज 2 में हमारे पास या फेज 1 में हमारे पास क्या था, हमारे पास फेज 1 में एक नंबर एरे था। अगर यहाँ पे मैं माउस कर्सर थोड़ी देर छोड़ दूँ तो इट इज सेइंग, let me just wait at it, it is saying that we are having 1200 by 1200 and 3 is representing basically RGB हमारे पास शेप है, और सी बात है RGB इमेज थी, यहाँ पे फेज 1 आ गया हमारे पास। अब फेज 1 इंकोडिंग क्या कर रहा है, ये उसको इंकोडिंग कर रहा होता है इन 128 बिट आई गेस, तो या 128 बाइट है या 128 बिट है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, बेसिकली हमारे पास जो भी इमेज आती है वो ऑटोमेटिकली ग्रेस्केल भी कन्वर्ट हो रही होती है, और उसकी क्योंकि अगर ग्रेस्केल कन्वर्ट होती है तभी यहाँ पे हमारे पास वन लिखा नहीं आ रहा, और वो सिंगल डायमेंशन बन जाती है। ठीक हो गया, सिंगल डायमेंशन, नॉट डबल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। ये बना बनाया मेथड है, आज हम बना बनाया मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये सिंपल फेस रिकग्निशन की जो लाइब्रेरी का है ऑप्शन फंक्शन फेस इनकोडिंग्स, तो ये पूरे के पूरे शेप को या पूरी पूरी उस इमेज को इनकोड कर देगा ना, सिंगल डायमेंशन 128 साइज होगा उसका, एंड नो RGB। ठीक है, हमारे यहाँ पास हमारी वो जो इमेज थी यहाँ पे प्री प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो गई है, तो हम लोग स्क्रैच से नहीं कर रहे हैं वो काम यहाँ पे। सो सेम वी हैव परफॉर्म फॉर आवर सेकंड पिक्चर एमा वाटसन्स, एंड थर्ड पिक्चर फॉर रॉबर्ट डाउनी जूनियर्स, एंड फोर्थ फॉर सुंदर पिचाईस। तो यहाँ पे इरन मस्क के बाद हमने 3 पिक्चर्स और हमने यहाँ ट्रेन कर लिए, एंड आई हैव ऑलरेडी शोड यू फेसेस, किस तरह के फेसेस मैंने यहाँ पे ट्रेन करे हैं, सिंगल फेसेस हैं और सबको डिफरेंट इनकोडिंग में डाला है। Now what gonna I do? I will create a list of all the encodings. अब मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ नॉन फेस इनकोडिंग इज इक्वल टू, अब जितने भी मैंने फेस इनकोड किए हैं यहाँ पे मैं सारे नाम यहाँ पे डाल दूंगा। अंडरस्टूड दैट? इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर? सो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन।
So let me know guys if there's any question. Ayan has asked that can we do this without OpenCV2? Yes, we can do. I'm running for the simpler thing. जैसे कि मैं starting में कहा that in this we gonna use pre-trained model. हम लोग यहाँ model training नहीं करेंगे, हमारे पास model train हुआ हुआ है. By default I guess CNN होता है convolutional neural network और हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बना रहे बिकॉज वो फिर कम से कम 4 घंटे की क्लास होगी और वो बहुत डिटेल होगी जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बगैर होगी. 3 घंटे की क्लास है उसको हम 2-2 में डिवाइड कर सकते हैं, 1.5 घंटा, एंड यू गोना सिक इन दैट. तो वो मेरा भी कराने का बिल्कुल मूड नहीं है मशीन लर्निंग प्रोग्राम बिकॉज यू आर वेरी नाइव फॉर दैट. So here we are building list for phase 1 encoding, phase 2 encoding, phase 3 encoding and so on. हमारे पास ये लिस्ट आ गया जिसको हमने नाम दे दिया नॉन फेस encodings. ये किस लिए आ गया हमारे पास? जब when we gonna detect the face and that detected rectangle we gonna identify, we gonna try to identify that face we are having. तो वो अगर हमारे पास किसी आइडेंटिफाइड या किसी वेरीफाइड इनकोडिंग से मैच कर रहा होगा लाइक दिस, तो उसको वो क्या नेम रिप्रेजेंट करेगा? उसको वो ये नेम रिप्रेजेंट करेगा. उसका भी कोड अभी आगे बनाएंगे. अभी हमने जस्ट क्या करा, उसी सीक्वेंस के अंदर हमने फेस 1 इनकोडिंग, फेस 2 इनकोडिंग, फेस 3 इनकोडिंग, फेस 4 इनकोडिंग में वही 4 नेम्स दे दिए, इलन मस्क, वाटसन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और सुंदर पिचाई. जब वो इससे मैच करेगा तो इलन मस्क आ जाएगा एंड फॉर एवरीवन इट गोना परफॉर्म द सेम. अच्छा, ये मैंने अपनी डिबगिंग करते वक्त डाली थी बिकॉज इट वाज गिविंग मी एरर एट अपर टॉप, तो ये मैंने यहाँ पे डाली थी. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ये जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया डन लर्निंग एंड क्रिएटिंग प्रोफाइल, मतलब हमारी लर्निंग भी हो चुकी है और हमारे प्रोफाइल्स भी क्रिएट हो चुके हैं. ये वो स्टेप है जब आप मोबाइल खोलते हो और मोबाइल पे आप बोलते हो कि सेव माय फेस फॉर फेशियल रिकॉग्निशन एंड देन इट ओपन्स द फेस एंड यू गोना स्टार्ट फेशियल रिकॉग्निशन. और फिर क्या होता है, ये अभी टेस्टिंग के वक्त की बात नहीं, लाइक व्हेन यू आर सेविंग योर फेस, तो उस वक्त वो आपके 10 टू किसी की कैपेबिलिटी 10 की होती है, किसी में 25 की होती है. कुछ आईफोन जो है 25 सैंपल स्टोर करता है, सैमसंग जो है वो भी शायद 25 सैंपल स्टोर करता है. गूगल स्टोर मोस्ट सैंपल्स, दे आर स्टोरिंग 40 सैंपल्स ऑफ योर फेस एंड इट टेक्स टाइम इन ट्रेनिंग एज वेल. दे हैव डिफरेंट एल्गोरिथम ऑफ कोर्स. तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सैंपल सेव हो जाते हैं एंड देन जब भी आप टेस्ट करते हो तो उसी की इनकोडिंग से मैच करके कर रहा होता है. राइट नाउ वी आर डूइंग ऑन सिंगल सैंपल. तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी रन हो गई हैं, प्रोफाइल्स क्रिएट हो गई हैं. नाउ व्हाट वी गोना डू, वी आर स्टेपिंग ऑन अ नेक्स्ट स्टेप. यस, वी आर ऑन अ नेक्स्ट स्टेप, और वो है हमारा, मतलब हमारा आधी ज़्यादा हमारी क्लास हमारी ऑलमोस्ट हो गई है. ये आधी क्लास हो गई है कह रहे हैं. Initializing function to add names to the attendance list CV. This is a bonus point of a class क्योंकि मैंने आज की क्लास बहुत शॉर्ट रखी थी और बहुत आसान रखी थी फॉर बिकॉज ऑफ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो दैट इज द रीज़न के मैंने इसको शॉर्ट रखा, लेकिन ये एक फीचर ऐड की है इन दिस कोड. व्हाट वी गोना परफॉर्म कि जो भी हमारे पास फेस डिटेक्ट हो रहा होगा ना, इट गोना ऐड हिज और हर नेम विद अ टाइम स्टैम्प इनटू द CSV फाइल कि भाई ये बंदा इस टाइम इतने बजे यहाँ पर आया. अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है. तो यहाँ पे सब यही सीन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा. सो अब कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ क्या हो रहा है, हमने कोड को नाम दिया है मेक अटेंडेंस एंट्री. यहाँ पे हमारे पास आएगा नेम. अब ये नेम कहाँ से आएगा, वी गोना सी दैट लेटर. तो यहाँ से हमारे पास नेम आ रहा है और नेम के अंदर मैंने फंक्शन बाय हार्डकोर फिक्स कर रखा है दैट डिफॉल्ट, और जो यूआरएल दिया हुआ हमने कि हमारे पास ये अटेंडेंस लिस्ट डॉट CSV है. वी आर नॉट करेंटली वर्किंग ऑन डेटाबेस, वी आर वर्किंग ऑन फाइलिंग. वर इज रिप्रेजेंटेड बाय R प्लस. R प्लस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी फाइल ओपन हो वो एज अ रीडिंग और राइटिंग के लिए ओपन होगी. यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इट गोना ओपन फॉर फाइल, ओपन फाइल, ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. Then what we're gonna perform, we're gonna have all lines is equal to file dot read line. अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा फ्रेम के अंदर 15 रोज थी तो या 15 लाइन्स थी, तो उन 15 लाइन्स को रीड करने के बाद किस में असाइन करा देगा, ऑल लाइन्स के अंदर. हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी लाइन्स असाइन हो जाएंगी या सारी सारी रोज असाइन हो जाएंगी. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. How it will get trained on a single pic. Imagine we can see that in a very coming section कि single pic पे कितना अच्छा train हो रहा होगा. Basically we are not training our program. This is a very important concept to understand. We are not training our model. This is a pre-trained model. मॉडल को हम पहले ही ट्रेन कर चुके हैं. अब कैसे कर चुके हैं, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग. ओके, आई गॉट योर वन मोर मैसेज. या तो यही वही हो रहा है. आई एम टेलिंग टू अदर्स गाइस एज वेल, वी आर जस्ट
यू कैन से ट्रेन हुआ हुआ हमारे पास, हम लर्न करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखिए। Alright, let me know again if my video quality disturb again. I hope it won't get disturbed right now. Alright, so यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये सारा का सारा, सारी की सारी लाइंस थी हमारे पास, और लाइंस में आ गई हैं। Then we are having a empty list, attendance list. हमारे पास लाइंस आ गई हैं, वो क्यों आ गई हैं वो बता दूंगा मैं आपको। उसकी रीज़न थी एक बहुत बड़ी, क्योंकि हमें पुरानी लाइंस भी सेव करनी थी। So what we are having here कि attendance list is equal to zero is equal to empty list। हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दी एंड वी गोना परफॉर्म अ फोर लूप, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जो भी मतलब हम यू कैन से किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि हम क्या क्या कर रहे हैं कि जो बंदा आए वो यहाँ पे इसका नाम रिकॉर्ड हो जाए। अब किस तरीके से होगा, फॉर लाइन इन ऑल लाइन्स। अब हर लाइन के अंदर हम पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, हर जितनी भी लाइंस हैं उसके अंदर एक एक लाइन के ऊपर वो स्किप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी मूव टू द लास्ट, ठीक है। ये हमारा एक फॉर एग्जाम्पल एक डाटा फ्रेम था, ठीक है। इसके अंदर से हमारे पास तमाम की 5 लाइन्स इंपोर्ट हो गई विद डेट एंड टाइम। अब ये वो डाटा जो हमारे पास पहले से ही इंपोर्टेड था, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टोर करेगा। स्टोर करने की एक वजह है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें स्टोर क्यों करा, हम चाहते तो ना भी स्टोर करते हैं। तो स्टोर करेगा और नाउ इट गोना स्प्लिट द इंटायर डेटा, इंटायर यू कैन से टोकन्स। टोकन क्या होते हैं, एक एक कॉलम के एक एक वर्ड्स को मतलब एक एक कॉलम को मजीद सेपरेट करना। तो कहाँ गया कोड, ये रहा। तो वी आर बेसिकली स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किस बिहाफ पे कर रहे हैं, कॉमा की बिहाफ पे कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो जहाँ जहाँ वहाँ पे कॉमा आएगा वो उसको एक अलग उसमें अलग उसमें मतलब कॉलम के अंदर स्प्लिट कर देगा। दिस इज अ backend algorithm we are performing here to just store the lines separately. You can have more efficient code as well, but what just came in mind I just wrote there. तो यहाँ पे attendance list dot append entry 0। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एंट्री के अंदर वो फाइल आई, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री के अंदर एक अल्फाज नहीं आया हुआ, देयर विल बी 3 वर्ड्स। कैसे, एक नेम होगा हमारे पास, एक हमारे पास डेट होगी और एक हमारे पास टाइम होगा, ठीक है ना। इस तरह के 3 नेम्स होंगे। तो 3 नेम्स कैसे आया हमारे पास, एक इन लिस्ट फॉर्मेट आया, और किस तरह स्प्लिटिंग हुई है उनकी, कॉमा की बिहाफ पे स्प्लिटिंग हुई है। तो अब कॉमा की बिहाफ पे जब स्प्लिटिंग हो गई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस लिस्ट डॉट अपेंड एंट्री 0। हमें सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेम चाहिए। लेट मी टेल यू इन अ इजी मैनर, ये क्यों मैंने कमेंट कर रखा था ये बाद में दिखाऊंगा आपको। हमें सब उनके नेम चाहिए। अब नेम से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब हमारे पास नेम आ गया हमारे पास अटेंडेंस लिस्ट के अंदर, वो तमाम नेम आ गए जो ऑलरेडी मौजूद थे। सो नाउ वी कैन हैव दैट इफ नेम नॉट इन अटेंडेंस लिस्ट। अगर नेम अटेंडेंस लिस्ट में मौजूद ना हो तो ही उसकी अटेंडेंस लगाओ, वरना ना लगाओ। ये क्या था, बेसिकली एक वैलिडेशन मैंने लगाई कि मैं आया सुबह, मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ फॉर एग्जांपल, या मैं स्कूल में एंटर हुआ, मैं ऑफिस में एंटर हुआ, कहीं पे भी एंटर हुआ, एंड दे रिकॉग्नाइज माय फेस एंड मार्क मी एंट्रेंस। बट एट द लंच टाइम आई वेंट आउट, और मैंने लाइक आई हैव टू फॉर एग्जांपल मैंने अपने बच्चों को स्कूल से उठाना है और मैं उनको स्कूल से ड्रॉप करके वापस अपने ऑफिस आ गया। एंड देन व्हेन आई केम टू द ऑफिस इट गोना रिकॉग्नाइज माय फेस अगेन, ठीक है ना। अब उसने मेरा फेस रिकॉग्नाइज किया मे बी फॉर ओपनिंग द गेट, लेकिन क्या वो मेरी अटेंडेंस दोबारा मार्क करे, नहीं करेगा। हाँ, उसके लॉग्स में होगा कि ये बंदा सेकंड टाइम आया, क्योंकि वो एक बहुत लंबा एल्गोरिथम होता है, उसके लॉग्स में होगा कि बंदा सेकंड टाइम भी आया, लेकिन उस डे की अटेंडेंस के अंदर मार्क दोबारा नहीं होगा। एक सिंपल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया हर क्लास के अंदर, क्योंकि स्कूल्स में ये होता है कि क्लास में ही अटेंडेंस होती है। तो स्कूल में आप गए और फर्स्ट पीरियड के अंदर या फर्स्ट जो भी आपका सेशन है उसमें क्लास में आपका अटेंडेंस हो रही है, तो फेशियल रिकॉग्निशन हो रही है, ऊपर कैमरा लगा हुआ है एंड इट्स रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल कैमरा मल्टीपल फेसेस एंड स्टोरिंग द वैल्यूज। अब वो क्या हर एक घंटे बाद करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट इट गोना डू, डे की अटेंडेंस एक ही होती है, वो एक दफ़ा ही अटेंडेंस लेगा, और अगर नाम ऑलरेडी लिस्ट में होगा उस डे की तो उसके अंदर ऐड नहीं करेगा। तो ये एक वैलिडेशन थी दैट इफ नेम नॉट इन अटेंडेंस डेट नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। हमारे पास जो करंट डेट टाइम होगी वो हमारे पास आ जाएगी। आई डोंट नो हाउ टू मेंशन जीएमटी हियर। मैंने जीएमटी मेंशन नहीं करा, तो ये जीएमटी डिफॉल्ट 0 जीएमटी पे टाइम जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 6:37 हो रहा है,
so it's going to be like 137 I guess, yes, in a टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे हमने लिखा है डी टी स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ डॉट एस टी आर एफ टाइम, और ये हमारे पास वो टाइम का फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि ये हमें टाइम का एक फॉर्मेट दिया है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, जिसमें हमने लिखा है कि भाई इस तरीके से डेट है लिखी हुई, इस तरीके से हमारे पास आई गेस दिस इज मंथ, और यहाँ पे हमारे पास ईयर आएगा लिखा हुआ, फिर हमारे पास यहाँ पे आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स की हमने एक फॉर्मेट मेंशन कर दिया। इस तरह ही आपको मेंशन करना है, ये जैसे मर्जी आपका स्टैंडर्ड चल रहा हो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इस हिसाब से आपके नाम के आगे ना वो डेट ऐड हो जाएगी। किस तरह ऐड हो जाएगी, नीचे हमने लिखा फाइल डॉट राइट लाइन्स, अगर वो नाम ऑलरेडी मौजूद ना हो तो यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग तभी इस्तेमाल कीजिएगा इफ़ यू आर हैविंग पाइथन 3.8 अबव। तो यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा न्यू लाइन, जहाँ पे भी CSV फाइल होगी उसकी न्यू लाइन पे जाएगा, वो आपका नाम प्रिंट करेगा। ठीक है, नाम प्रिंट करने के बाद नाम कैसे प्रिंट करेगा, यू सिंपली एंटर दिस हियर यूजिंग एफ स्ट्रिंग इज वेरी इजी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करा, यहाँ पे आपका नाम आ गया, कोमा डाल दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डी टी स्ट्रिंग डाल दिया, आपका नाम आया, कोमा आया, और ये पूरा का पूरा डेट भी आ गया, उसके अंदर कोमा भी है साथ, फिर टाइम भी आ गया। तो मतलब आपके तीनों के तीनों कॉलम एक साथ उसके अंदर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो में इम्प्लीमेंट हो गए हैं CSV फाइल के अंदर। ये था हमारा एक बेसिक फंक्शन। आई होप गाइस यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। वी गोना जंप टुवर्ड्स आवर परफॉर्मिंग face recognition and entering attendance with timestamp. So here we are having file name is equal to content drive slash my drive slash faces slash unknown 02 jpg। ये कहाँ से आई है ये फाइल यहाँ से आई है मेरे अननोन फोल्डर। unknown 02 में कौन सी फाइल है हमारे पास, ओके वी आर हैविंग एम वर्सन है, तो ये यही फाइल उठाएगा फिर। तो ये मैंने हार्ड कोडिंग करने को सोचा, अभी ये हम बेसिकली कोई ऐप नहीं बना रहे, सो यू कैन वेरीफाई इट्स अकॉर्डिंग योर ओन एल्गोरिथम्स इन द लेटर ऑन। तो जस्ट वी गॉट द इमेज ऑफ अननोन फाइल, ठीक है। अब हम इसको भी हमको लोड करना होगा, और किस तरीके से लोड करेंगे, वी गोना परफॉर्म हियर unknown image is equal to face recognition dot load image file। हमने यहाँ पे इसको इमेज को लोड किया, और यहाँ पे हमारे पास जो कर्सर अगर मैं यहाँ रखूँ तो बताएगा कि हमारे पास ये भी जो शेप आई है वो 1200 बाय 1200 मतलब 8 GB वैल्यूज की शेप आई है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको पहले लेट मी सी व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, हमने इसको अपने पास एक इमेज फॉर्मेट के अंदर भी रीड करना है। ठीक हो गया। इमेज फॉर्मेट पे रीड क्यों करना है, तो क्योंकि हम उसको विजुलाइज भी करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको इमेज फॉर्मेट पे भी रीड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी एक इमेज होगी इसके अंदर पड़ी हुई, या फिर शायद एरे हो, क्या लिखा है यहाँ पे, एनडी एरे अननोन इमेज टू ड्रॉ। तो यहाँ पे भी एरे, तो फिर हम क्यों कर रहे थे उसको, लेट मी ओके 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 सॉरी 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 फॉर दैट। अच्छा, फेस रिकग्निशन हम इसलिए कर रहे थे बिकॉज टू अप्लाई कोडिंग है, और ये हम उसी लिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको आगे जाके विजुलाइज करेंगे अपने लिए, जैसे हम लोगों ने पहले किया था विजुलाइज बाय यूजिंग पिल एंड व्हाई द हेक। ग्राफिक कार्ड के अंदर यही इशू होता है, आपको ग्राफिक कार्ड खोले अपना 30 मिनट ज़्यादा देता नहीं है अगर आप कुछ रन ना करो, डिस्कनेक्टेड बाय इटसेल्फ, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने CV ओपन CV की लाइब्रेरी यूज करते हुए इमेज रीड कर लिए किसके अंदर, अननोन इमेज टू ड्रॉ, जिसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जो हमने इमेज को विजुलाइज करा था बाय यूजिंग numpy, वी हैव यूज्ड मैटप्लॉटलिब एज वेल एंड वी हैव यूज्ड पिलो एज वेल, PIL जो हमारी लाइब्रेरी थी, हमें दोनों ही यूज करके विजुलाइज करवा रखा है। Now since we are having array in unknown image and unknown image draw in both, अब unknown image में हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर unknown image पास करेंगे in our face recognition dot face locations। ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास face locations आ जाएंगी, ये देख रहे हो आप, 428 946 1094 एंड 280। ये क्या हो रहा है बेसिकली हमारे पास, ये पिक्सल्स की लोकेशन आ रही है कि किस लोकेशन पे कौन सी मतलब स्क्वायर जो होगा कहाँ कहाँ से बनेगा। अभी किस तरीके से बनता है, ये एक बताता है टॉप लेफ्ट की और एक बताता है बॉटम राइट। अब मेरे पास कैमरे में उल्टा आ रहा होगा आपके पास, तो मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ कि टॉप लेफ्ट आ रहा है ना ये, हाँ ओके।
सो टॉप लेफ्ट आ रहा होगा एक साइड पे और नीचे वाली साइड पे बॉटम राइट, ये 2 पॉइंट लेता है एंड 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ रेक्टेंगल बिकॉज रेक्टेंगल आराम से ड्रॉ हो जाता है। वो 2 पॉइंट्स हमारे पास लोकेशन है। तो अगर हम लोकेशन को वैसे जनरली बात करें, सो वी आर हैविंग दिस लोकेशंस, और अब हम क्या करेंगे, फेस इनकोडिंग्स इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस इनकोडिंग्स अननोन इमेज कोमा फेस लोकेशंस। अब हम जो फेस की इंकोडिंग कर रहे हैं ना, हम स्पेसिफिकली उसी इमेज की इंकोडिंग कर रहे हैं जो हमारे पास इमेज के अंदर आई है। ठीक है, मतलब हमने इमेज के अंदर अगर बहुत सारा राउंड भी था तो वो सब उस स्क्वायर पे जाएगा जहाँ पे हमारे पास वो पिक्चर अवेलेबल थी। आप चाहो ना तो इस इमेज को इधर भी यूज कर सकते हो, इधर भी, मतलब आप इधर चाहो तो अगर आप चाहो कि भाई डेटा सेट के पास सिर्फ वही इमेज जाए, इमेज में से स्क्वायर ही जाए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने डाटा सेट उठाया ही वही था जिसमें सिर्फ इमेजेस थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, मतलब प्योर पूरी की पूरी स्क्वायर में एक इमेज आ रही थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसको करने की। बट यू कैन डू इन योर लर्निंग प्रोसेस एज वेल। यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन के वक्त ये लगा दिया लोकेशंस का, यहाँ पे हमने फेस इनकोडिंग्स का लगा दिया, फेस लोकेशन मेंशन कर दिए। सो इट गोना डिटेक्ट आइडेंटिफाई ऑन दैट स्पेसिफिक, या यूँ कह लो कि इट गोना इनकोड दैट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट इमेज। अब स्पेसिफिक पोर्शन हमारे पास इनकोडिंग हो गई है इन फेस इनकोडिंग्स। व्हाट वी गोना डू हियर, वी फ्रॉम इमेज डॉट फ्रॉम एरे, हमारे पास ऑलरेडी एरे मौजूद है। कहाँ है एरे मौजूद, ये रहा एरे मौजूद, ये रहा। हमने एक फाइल नेम से एरे यहाँ बनाया था, लेकिन हमने इसके ऊपर कुछ चीज़ें परफॉर्म करी, और एक हमने बनाया था जो हमें ड्रॉ करना था ओपन सी में से इमेज रीड, तो यहाँ पे हमने फाइल नेम से यहाँ पे बनाया। तो हम अननोन इमेज ड्रॉ को यूज़ करेंगे। अगर उसको नहीं भी करें तो हम अननोन इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर लो यार, एक ही बात है। ठीक है, तो पिलो इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम एरे, हमने यहाँ पे इमेज पास कर दी है, हमारे पास एरे चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1200 बाय 1203। तो ड्रॉ इज इक्वल टू क्या किया हमने, इमेज ड्रॉ डॉट ड्रॉ पेज इमेज। यहाँ पे हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या था हमारे पास, यस वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि जिसका नाम है इमेज, पिल इमेज नाम है उसका। तो नहीं, नाम कुछ और था, लेट मी सी इट अगेन, इट्स नॉट शोइंग अगेन, या पिल डॉट इमेज इंस्टेंस है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन से। पाइथन में एटलीस्ट एक वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट बेस चल रहा होता है। सो ड्रॉ इज इक्वल टू इमेज ड्रॉ डॉट ड्रॉ पिल इमेज। हमारे पास वो इंस्टेंस जो हमारे पास था, इट गोना पास हेयर एंड इट गोना विजुअलाइज दैट इमेज। तो हमारे पास जैसे ये इमेज आ रही है ना, ये पूरी की पूरी इमेज फ्रॉम दैट एरे विल गोना प्रिंटेड बाय इटसेल्फ। नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट, कि हमारे पास ये था फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो 4 वैल्यूज चली गई, और जो हमने कहाँ से आई थी, हमारे पास फेस लोकेशन से आई थी। फेस लोकेशन पूरी की पूरी 4 वैल्यूज जो होगा ना यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा, मतलब ये बेसिकली हमारे पास एक इंडेक्स है। ये 5 की 5 वैल्यूज जो होंगी हमारे पास एज एन इंडेक्स परफॉर्म हो रही होंगी इन 2 लिस्ट के ऊपर। अब इस लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट है ना, हाँ, दिस इज अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल। तो इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो 428 we're gonna represent for top, 946 we're gonna represent for right and so on। हमारे पास उन सबकी वैल्यूज चली गई हैं। देन वी आर पासिंग फेस इनकोडिंग्स हेयर, और उसके ऊपर जो इंडेक्स होगा हमारा फेस इनकोडिंग के नाम में चलेगा। जस्ट वी हैव रिमूव एस लेट बेटर बी अंडरस्टैंडेबल। सी इफ द फेस इज अ मैच फॉर द नोन फेस। ठीक है ना, यहाँ पे हमने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी एस लगाया। मैचेस इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट कंपेयर फेसेस, ये फंक्शन है हमारे पास। अभी क्या करेगा कि वो कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा, वी वर हैविंग नॉन फेस इनकोडिंग्स, हमारे पास ये थी, और यहाँ पे हमें लिख दिया फेस इनकोडिंग। नॉन फेस इनकोडिंग कहाँ से आई थी हमारे पास, यहाँ से आई थी, हमने यहाँ पे नॉन फेस इनकोडिंग, लेट मी, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन फेस इनकोडिंग थी जो हमारे पास चेहरे उसको ऑलरेडी मालूम थे। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन फेस इनकोडिंग्स आ गया, और यहाँ पे हमने फेस इनकोडिंग वो मेंशन कर दी जिसको उसने कंपेयर करना था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नेम इज इक्वल टू अननोन, क्यों दिया हुआ है आगे जाकर देखते हैं। फेस डिस्टेंसेस इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस डिस्टेंस नॉन फेस इनकोडिंग्स कॉमा फेस इनकोडिंग। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्टेंसेस आ रहा है कि बाय यूजिंग फेस डिस्टेंस के हमारे पास नॉन
फेस इंकोडिंग्स का और फेस इंकोडिंग के दरमियान डिफरेंस कितना था। अब ये डिफरेंस बेसिकली किस हिसाब से चल रहा होता है कि इसने पहले वाली पिक्चर को कंपेयर किया किससे, दूसरी वाली पिक्चर से, उसके दरमियान जो भी मैथमेटिकल डिफरेंसेस होंगे वो किस पे स्टोर हो रहे होंगे, फेस डिस्टेंसेस के अंदर। और ये सब एक से नहीं कर रहा होगा, ये सबसे आएंगे जितने भी हमारे पास नॉन फेस कोडिंग के अंदर जितने भी हमारे पास फेसेस होंगे ना मौजूद, उन सब से कंपेयर करेगा। उससे हमें बेस्ट जो मैचिंग होगी वो उठानी है। किस तरह उठाएंगे हम? बेस्ट मैच इंडेक्स इज इक्वल टू नंपाई डॉट आर्ग्यूमेंट मिनिमम फेस डिस्टेंसेस। अब जिस पे सबसे कम जो होगा डिस्टेंस होगा, मतलब वो सब इमेज सबसे ज्यादा मैच हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पिक्चर है और मेरी एक साथ वाली पिक्चर है, तो हम दोनों की पिक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर एक मेरी पिक्चर है और एक पिक्चर आप फॉर एग्जांपल लगा दो किसी और बंदे की, सो वी गोना हैव सो मच डिस्टेंस देयर। तो जहाँ पे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा, हम वहीं का आर्गुमेंट उठाएंगे फ्रॉम व्हाट फेस डिस्टेंसेस, और उसको हम कहाँ स्टोर करा देंगे, बेस्ट मैच इंडेक्स के अंदर। इफ मैचेस बेस्ट मैच इंडेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है, नेम इज इक्वल टू नोन अंडरस्कोर फेस अंडरस्कोर नेम बेस्ट मैच इंडेक्स। हमने यहाँ पे डाल दिया कि अगर यू कैन से किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास अगर उस मैचेस के अंदर सबसे अच्छा डिस्टेंस आ रहा है, तो इट गोना रिटर्न दैट वैल्यू, और उस आर्ग्यूमेंट की मदद से उस मैचेस के थ्रू हमारे पास उसका नेम आ जाएगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस नेम में स्टोर हो जाएगा, जिसके थ्रू हम आगे नेम प्रिंट करने लगेंगे। और अगर नहीं स्टोर होता, बाय डिफॉल्ट हमारे पास नेम क्या होगा, हमारे पास बाय डिफॉल्ट नेम ये होगा, नेम इज इक्वल टू अननोन। नाउ हमारा लास्ट काम है, ये लास्ट काम क्या है, वी गोना ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द फेस यूजिंग द पिलो मॉड्यूल। ठीक हो गया। क्या करेंगे हम, cv2 डॉट रेक्टेंगल अननोन इमेज टू ड्रॉ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम 0 to 55 03। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर ओपन सीवी मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने वो पास जो हमें इमेज ड्रॉ करवानी थी, जो पर हमारे पास मौजूद थी, हमने वो यहाँ ड्रॉ करवाई, और हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिए टॉप लेफ्ट राइट बॉटम राइट। ठीक है, मैंने कहा था ना एक टॉप लेफ्ट का जाएगा और एक बॉटम राइट का जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट का चले गए। देन वी आर पासिंग कलर हेयर 0 to 55 0। तो इफ वी टॉक अबाउट, चाहे वो RGB हो या BGR हो, हमारे पास सेंटर में ग्रीन होता है, तो हमारे पास ग्रीन बॉक्स आ गया। एंड देन वी हैव पास हेयर 3 इज द साइज या साइज ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव ड्रॉन हेयर। उसकी जो पिक्सल लेंथ है, कितना उसका आपको ब्रॉड रखना है रेक्टेंगल को, वी हैव पास दैट साइज हेयर एज वेल। देन ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल, यहाँ पे हमें लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, हमने वही काम करा और कुछ भी नहीं करा, सिंपली जो है ना रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। ऑल राइट, ओके, सो रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद हमने क्या करा कि CV2 डॉट पुट टेक्स्ट के अंदर हमने अननोन इमेज ड्रॉ डाला, ठीक है, नेम डाला, और हमने बोल दिया कि कहाँ पे उसको प्रिंट करना है। हमने बोला लेफ्ट टॉप पे जाओ और 20 पिक्सल्स ऊपर ना उससे आप उसका नाम प्रिंट कर दो। क्या कर दोगे, नाम प्रिंट कर दो। फॉन्ट क्या रखा हमने, CV2 डॉट फॉन्ट हर्षे डॉट सिंप्लेक्स। आप चाहो तो आप मजीद फॉन्ट चेक कर सकते हो इसके ऑन ओपन सीवी लाइब्रेरी, लेकिन हमने यहाँ पे अभी यही फॉन्ट रखा है। ये अच्छा सा फॉन्ट है वैसे, काफ़ी यहाँ क्लियरली विजिबल है, लेकिन अच्छा फॉन्ट है। एंड यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी है, 0 to 55 विच इज गोइंग टू प्रिंट इन रेड। रेड से क्या होगा हमारे पास, रेड कैसे होगा, ये 8 GB नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर के ओपन सीवी के अंदर हमेशा ये BGR होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये BGR के अंदर ही प्रिंट हो गया, और मतलब हमारे पास रेड कलर का अंदर नाम लिखा आ गया। एंड देन वी हैव मेंशन 2 हियर, जो हमारे पास नाम का साइज होगा, ये हमने पिक्सल लेन यहाँ पे दी हुई है, एमा वाटसन जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वो आ गया। एंड CV2 डॉट लाइन AA, ये मेरे ख्याल से दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लाइन वी आर ड्राइंग हियर। जो हम लाइन का फॉर्मेट है वो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, उसका यू कैन से वो है, ये बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे टू मेक श्योर मैंने यहाँ से उठा कर डाल दिया था।
सो वी आर पेंटिंग नेम ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो मैं नाम लिखा आ रहा है ये मैं डिबगिंग के लिए करता हूँ। हम कहते हैं ना प्रिंटफ लगा दिया, तो ये वही वाला सीन है। डिबगिंग के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर ये प्रिंट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने देखा एक जगह cv2.line AA लिखा हुआ था, मैं लगाया तो चल गया। समझ में आने वाली बात नहीं थी, लेकिन चलो हो गया तो हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, नाम भी प्रिंट हो गया। एंड बाय यूजिंग दिस फंक्शन मेक अटेंडेंस एंट्री, हमारे पास CSV फाइल के अंदर उसकी अटेंडेंस की एंट्री भी हो जाएगी, जो कि मैं भी आपको भी दिखाऊंगा उसके बाद। अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो गई, रेक्टेंगल भी आ गया। रेक्टेंगल हमने स्टोर करा दिया CV2 के अंदर, फिर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इमेज के ऊपर। अभी शो नहीं हो रहा है, अंदर ही वर्चुअली ड्रॉ हो रहा है, डायनामिकली ड्रॉ हो रहा है। फिर उस रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट भी शो कर दिया, जैसे हम लोग मैटप्लॉटलिब में काम करते हैं, प्लॉटिंग हो गई है। देन व्हाट वी डू, वी सिंपली शो द प्लॉट या शो अर इमेज। हमने अपनी इमेज शो कर दी सिंपली, कैसे, अननोन इमेज टू ड्रॉ के थ्रू। यहाँ पे हमने सिंपल इमेज शो कर दी है। राइट, पहले मैंने ये ट्राई किया था, ये नहीं चला, तो फिर मैंने डायरेक्ट ये काम कर दिया। अब क्या देखना है हमें कि क्या सही डिटेक्ट किया है, बिल्कुल सही डिटेक्ट किया है। लेट मी रन एंटायर कोड बाय अगेन, और मैं भी आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा बाय चेंजिंग सम पिक्चर्स। टिल दैट लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Screen is blur. I don't know why it's blur. My net is working so fine. Uh, Let me know other guys as well कि उनके पास भी screen blur आ रही है or not. Ping is acceptable. Net is slow. Yeah, it's just 20 Mbps. I am having 40 Mbps package and it's getting slow here. Maybe someone is using computer at another room. All right. So all right. I hope now it's my qualities may have fine. तो भाई यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट करा एमा वाटसन। अब यहाँ पे हम लोग किसी और नाम के थ्रू प्रिडिक्ट कर लेंगे बाय जस्ट सिंपली चेंजिंग द नेम ऑफ आवर इमेज। हमारे पास इमेज ऑलरेडी मौजूद है, रन हो रहा है इलन मस्क। ठीक है, आपको अगर पता हो तो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट जो था ना चेहरा था। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसने एक सैंपल पे कितना अच्छा सीखा है, जो कि हमारा एक फन पार्ट है। और मैं चाहूंगा कि उस तक आप लोग, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो उससे क्वेश्चन दो। फिर उसके बाद हम लोग अटेंडेंस शीट के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारा 2 मिनट का काम भी नहीं है। तो फन पार्ट क्या है, लेट्स ट्राई सम डिफरेंट इमेजेस। चलो डिफरेंट इमेजेस ट्राई करते हैं। ऑलराइट, किसकी इमेज ट्राई करें, पहले इलन मस्क की ट्राई करते हैं। ओके, कुछ ऐसा कि जैसे अभी तक हमने यूज की ही नहीं हो। ये कैसी इमेज है? ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कोई इमेज ट्राई करूं तो आप भी मुझे अपना यूआरएल कोड शेयर कर सकते हो। इलन मस्क है हमारे पास, सुंदर पिचाई है हमारे पास, ट्रेन हुआ हुआ, लर्न हुआ हुआ, और एमा वाटसन है, रॉबर्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर है आई गेस, या फिर यस, हाँ यही चार है। तो लेट मी नो। ओके, कौन सी पिक्चर है जो टफ हो उसके लिए थोड़ी ना। सब में एक जैसे दिख रहा है। इलन मस्क यंग फोटो, शायद यहाँ पे कुछ ऐसी आ जाए जहाँ पे हमारा मॉडल अब कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही यंग हो गई। सो लेट अस सी कि ये वाली कैसी करता है ये चेक। बट वी गोना जस्ट डू हियर, वी गोना ओपन दिस इमेज फ्रॉम हियर, वी गोना कॉपी दिस यूआरएल, और जाएंगे इस फाइल के अंदर, एंड वी जस्ट गोना पुट दिस यूआरएल हियर। It's giving me error. Where is the error? No such file or directory. What it means by it means कि ये हमारे इससे URL से नहीं उठा सकता। No worries, no worries, baby, no worries। यहाँ पे हम सिंपली सेव कर लेंगे उसको। Unknown, okay, unknown 04। Just hold on, ट्राई तो करना चाहिए ना, ऐसा नहीं तो मजा कैसा आएगा। Okay, and we're gonna simply do this here। ओके, अपलोड हो गई है। लेट मी ट्राई अगेन। That will be a fun। That's exactly a fun। Testing your model with some wow man, it has some done pretty good with the simple
All right, now let me get some more tough. How about this? How about this? This is of course not gonna happen. So let me just play some fair thing. But okay, just go with this. Go with the flow. Performing this. And let me rename it like 5 और इसको मैं अपने Google Drive पे डाल दूँ. लेट मी नो गाइस क्वालिटी कुछ बेहतर होगी या अगर क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो मजा कैसा आएगा आज की वर्कशॉप का. लेट मी नो गाइस प्लीज. अगर अभी भी नहीं हो रही होगी ना सो आई एम गोना डिसेबल माय कैमरा सो इट मे वर्क बेटर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई है एंड आई एम गोना कट दिस बार हियर. यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 कर देंगे. यू कैन डू दिस ऑन योर ओन पिक्चर्स. कल हम एडवांस कर लेंगे थोड़ा. It's being running here. It's being run here and then. Oh wow, man! It is such a great. इतनी young picture भी इसने कर ली है. Wow. Okay, so let me find some more. ये मेरे ख्याल से बस ना इलन मस्क का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इट्स लुकिंग ऑलमोस्ट द सेम. क्योंकि मशीन लर्निंग जिन स्ट्रक्चर पे जाता है उस स्ट्रक्चर पे हम ही जा रहे होते हैं. It's it worked better than our traditional relatives who are comparing our faces to others. All right, so Elon Musk, and now we're gonna perform Emma Watson. Directly young pick, and okay, which pick is going to be very tricky for it? I guess this one will be tricky, I guess. Let me see that because she is having a lot smile here, and we are not having smile in that previous photo. Okay, unknown 6. We have saved here. We're gonna upload it here. Uploading, and please don't take time and just do it like away. Wow, what's giving me error? Okay, अभी तक upload नहीं हुई है शायद. Unknown 06 यही नाम था I guess. Unknown 06.jpg. Yes, it has been uploaded. Man, what are you doing with me? Let me see that again. If it has been uploaded or not. Okay, faces. Unknown. Yeah, upload it. Yeah. Why it's not getting the file? That's something very unknown. Yeah. So now our model is being tricked. यहाँ पे इसने इसकी बहुत यंग सैंपल को वो कह दिया. Let me find her a bit young. Just simply write Emma Watson. She's my favorite actress, by the way. Okay, so just grab this one. And this is going to be very easy for it because it's पूरा का पूरा चेहरा था. And I'm not trying to break this code by using 2 pictures right now. So let me find some complex picture जो कि check करना इसके लिए मुश्किल भी हो. Otherwise, what's the benefit here? Right. So let me just grab this. This is not a very difficult one, but let's see. Let me just grab this one and save images. Unknown. Seven. So this image has already been saved here. If I am getting bore you, if I'm making you bore, so don't worry. I'm just shifting to my actual work right now. I'm just trying to play with it. Okay, now here is 7. Again, the same problem. It's not getting here right now. It takes some time in uploading. It has been uploaded by the way. Please don't make me wait. Now it's got it. It usually takes 10 to 15 seconds. Oh, okay. So here our model is striking a little bit. It's saying unknown to this. All right. Okay.
अच्छा ये अगर कर रहा है मल्टी फेस, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टी फेस के लिए कोड नहीं करा, बट इट्स डिटेक्टिंग इट. So in that scenario, we can have the code for other people as well. So let me find that type of code. Last image, guys, only the last image. We're gonna have one last image now. How about this? Not this. Uh, there's little bit complex, right? Uh, यही यही मिल रही है तो अभी यही कर देता है. वहाँ कहीं कहीं भी मिल रही थी 2% इमेज हमें मिल रही थी ना, कहाँ मिल रही थी? ऑल राइट, लेट्स ट्राई दिस इमेज एंड वी गोना सी. सेव इमेज. ओके. एंड unknown and we're gonna name it 8 and we're gonna upload this last image right now and then we're gonna work on an attendance sheet जो कि हमारी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके तो हमारे पास ये आ गई है. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर आई है नहीं आई है. लेट मी रिफ्रेश इट. रिफ्रेश तो कर लिया लेकिन अभी तक आई नहीं है. अब आ गई है. ठीक है. सो लेट मी रन इट. ऑल राइट, तो हमने उसी को रन कर दिया. 8 कर लेना इसको पहले. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. ओके. How is it working, guys? Let me know in the comment section below. Uh, how is it working? All right, good suggestion. Search Elon Musk with Emma Watson. Good suggestion. All right, I'm gonna search that. Try Emma Watson without or with very heavy makeup. ये तो बड़ा rare task है. Elon Musk without makeup. All right. Okay, I'm gonna try to. Oh my God. So it's working fine here. So let me just work on this. Good suggestion. I forgot the name who have mentioned me. Elon Musk and Emma Watson. अच्छा, मीन वाइल मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आगे हम क्या कर रहे हैं. प्ले हम बाद में करते रहेंगे ताकि जिनका इंपॉर्टेंट टाइम हो वो चले जाएं. हम 7-10 तक अपना काम ही कंप्लीट कर लें ताकि सिंपली गोना इंपोर्ट पांडास फाइल है. पांडास लाइब्रेरी है एस पी डी. यहाँ पे हमने एक शीट हमने ली हुई है. ठीक है. और व्हाट वी गोना डू हियर, पहले मुझे उस शीट को ना पूरा रिमूव करने दें. यहाँ पे इधर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वेयर यू हैव बीन. इधर एक शीट थी ना. नहीं इधर नहीं है. ये हमारे अननोन फेसेस हैं. फेसेस पे आते हैं. यहाँ पे एक शीट थी मेरी. यस, ये एक शीट है. इसको जरा मैं एडिट करके ना पूरा रिमूव कर दूंगा, वाइप कर दूंगा ताकि बाय अब आपको अच्छे से दिख जाएगा. हाउ वी गोना सी योर CSV फाइल राइट नाउ. हाउ टू एडिट दिस फाइल. वाओ, नॉट अ गुड वे ऑफ एडिटिंग. ऑलराइट, मैं ब्लैंक फाइल पे डायरेक्ट वही अपलोड कर देता हूँ. इट्स गिविंग अ हार्ड टाइम हियर. Simply remove it. So easy, man. Remove करने में तो बहुत तेज है ये. And what we're gonna do here, we're gonna simply search about where I've saved my CSV file a long time ago. Yes, here is my CSV file. तो ये अपलोड हो रही है यहाँ पे. Let it be uploaded. And sorry for the internet issues if you are having or struggling with. So I'm really sorry for that. तो एनीवेज, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई है. ये वही इसका यूआरएल होगा ऑफ कोर्स. हमारे पास क्योंकि इसमें कोई हेडिंग नहीं थी, हमारे पास इसमें कुछ है ही नहीं ना, हेडर वेडर कुछ भी नहीं है. अभी हम बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं. सो आई हैव मेंशन हेडर इज इक्वल टू नन ताकि वो किसी नाम को हेडिंग में ना बना दे. देन आई हैव मेंशन माय कॉलम्स बाय इटसेल्फ. मेरे पास कॉलम कौन से होंगे? नेम्स होंगे, डेट होगा और टाइम होगा. यही आ रहे हैं हमारे पास. एंड देन आई हैव प्रिंटेड द शीट डॉट हेड. नाउ लेट जस्ट ट्राई इट. Try it with the from the scratch and control FN. Taking time. तो ये पहले तक इमेज प्रिडिक्ट, अभी पूरा सेल स्टार्टिंग से रन हो रहा है. जब तक ये इमेज प्रिडिक्ट नहीं होगी ना तब तक यहाँ पे हमारे पास सेव भी नहीं हो रहा. तो हमारे पास भाई एक अननोन बंदे की एंट्री हुई है और एक एमरसन की एंट्री हुई है. किस टाइम पे हुई है? यू कैन सी दिस हियर. और ये एग्जैक्टली अभी उस फाइल में जाकर सेव भी हो गया होगा. इफ आई शो यू हियर प्लीज. ये टीम्स का कौन सा मैसेज आ गया? ऑलराइट, सो इफ आई शो यू हियर, just navigate to this. Why you can't show me, man?
ऐसा तो नहीं कर रहा, अभी तो शो कर रहे थे। हो गया शो, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम के अंदर फाइल ड्राइव पे भी अपडेट हो चुकी है, ये एम्प्टी फाइल थी हमारे पास। ऑल राइट, सो हमारी वर्कशॉप यहाँ पे खत्म हो गई है, बट मीन वाइल हमारे पास 3 सेकेंड्स 3 मिनट्स और पड़े हैं जिसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वी गोना ट्राई सम things we haven't tried yet. We're gonna try bald Elon Musk. Okay, we're gonna try Elon Musk with Emma Watson. Some students said that quality is pretty good, and other is saying don't good. So please look at that. Don't make me confused. और कोड का एक्सेस चाहिए हो, so you can have it from my GitHub repository. Let me share it here. And if you are having some important or some fantastic images, you can share the URL of that image with me. I'm gonna use that image right now. Just coming 2-3 minutes. If you are having some important time, you can leave because we have done. All right, so just play a fun for 2 minutes. You can make this more advanced in coming days and just show to your siblings, younger siblings. Right, so Emma Watson with Elon Musk. I don't know that will ever happen, but let's just try. Oh, it had happened. So one time, I guess. No, she is not an Emma Watson. It's very hard to find Elon Musk with Emma Watson. Maybe we can find Elon Musk with Sundar Pichai. No, they have never met, I guess. They are very boring people. They have never met to anyone, or maybe too busy. Now, how we can have two people at the same time? All right. So, all right. I have written Emma Watson. I should have write Elon Musk here. That was my mistake. Okay, so we actually got it. We got it some collages, and that's not the case. We can work on it. Let me find some tricky ones. Okay. Jeff Bezos is looking so nice here. All right. So, all right. So just perform this one. Saving this image as right. So this is not a JPG format, and I'm not sure that if it work or not. This is a web HP. Let's try this one. No, we are not having Iran here. This is so simple that is why I'm not going towards it. Okay, let be more difficult. No, this was not a desired image. You can share your images with me, guys. Don't worry. I'm gonna upload it right away. Find it, find it, find it. I'm not having a very complex picture right now because we are having here collages. और collages बहुत simple होते हैं. Machine can predict it easily well. So we just wanna save here. This is PNG, man. Let us try PNG image. हो जाएगा मेरे ख्याल से. PNG हो जाता है. Yes. PNG anon 10. We have saved it here, and what we're gonna do? We're gonna upload this file here. Okay, since it's PNG, so we need to see if we are having the right URL for it. Has been uploaded or not? Okay, copying path. No, was not a desired image, by the way. Letting it refresh. 10th हमारी image थी. Okay, 10th हमारी image थी ना, तो यार दो ना यार जल्दी से. After this, we're gonna end the class, all right? So then we're gonna have Isha. I think we have uploaded at wrong directory. Yes, 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 yes. फिर चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना था. All right, so let us try. Okay. Okay. Why unknown to Sundar Pichai? That's a rare thing we have seen here. Yeah, that's exactly a rare thing we have seen here.
Okay, so I'll gonna look into that क्योंकि वैसे भी मल्टी क्लास था नहीं and it is representing unknown to other. मल्टी क्लास का एक अलग कोड होता है but we gonna see that होना तो चाहिए था लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा don't know. So but so far we have predicted the images and tomorrow we're gonna work on some advanced facial recognition. The problem I had right now is because my camera is already busy in Teams, ठीक है ना? तो एट टाइम तो मैं अपना कैमरा इस पे दिखा सकता हूँ या फिर इन प्रोग्रामिंग दिखा सकता हूँ. तो एट दैट टाइम आई एम गोना क्लोज माय कैमरा हियर और आई एम गोना यूज एन एक्सटर्नल कैमरा फॉर दैट. तो फिर हम लोग रियल टाइम भी कर सकते हैं. वीडियो के ऊपर रियल टाइम हमारी जो होगी ना रियल टाइम रिकॉग्निशन हो रही होगी. सो वील सी दैट टुमारो इंशाल्लाह. Till that let me see Q&A again. Okay. Okay, guys have given me some Elon Musk with mask. You guys are pretty uh, naughty ones, all right? ये मैं पहले ट्राई कर चुके थे. बर्ड में ये ये तो कर लेगा यार, इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है. ये आपने मुझे दे तो दी है लेकिन इसको मैं सेव कैसे करूं, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा. इट्स गोना टेक सो मच टाइम यार. लेट मी जस्ट डू वन सिंपल थिंग. वी गोना डू स्निप एंड स्केच. दैट्स द लास्ट वन, ऑलराइट. तो लेट मी सेव इट. बहुत अजीब सी सेव हुई है बट वी गोना सी हाउ इट गोना परफॉर्म. ऑलराइट एंड वेयर वी हैव इट. कहाँ गई? ओके भाई, सेव कर ली है मेरे पास अपने स्क्रीनशॉट लेके. मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ उसको. एंड वी गोना हैव इट फ्रॉम हियर. अपलोड हो रही है अननोन बट एंड देन व्हाट वी गोना डू. ओपन सीवी सो एडवांस कि अगर आपके 25 सैंपल्स के अंदर भी ना, अभी ओपन सीवी 4 जो वर्जन आया इट्स अमेजिंगली फास्ट. 4.3 आ गया लेकिन अभी एक ओपन कोलैब में मौजूद नहीं है वो. कोलैब उसको एक्सेस नहीं कर रहा शायद, लेकिन वो और भी ज़्यादा एडवांस है. सो ओपन सी वी गॉट मच बेटर ओवर टाइम. तो इट्स प्रीटी गुड. इफ समवन सेज यू कि यार ओपन सी वी तो बच्चे का काम होता है, सो यस ओपन सी वी हमारा काम बहुत आसान होता है. एक्सपेक्ट टू सी एन 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 पार्टॉर्च थिंग्स अदर. यहाँ पे मैं कहाँ डाल रहा हूँ? थैंक्स गॉड आई हैवंट मेंशन हियर. Let us run this. Last thing to do. Unknown. Unknown. तो भाई अननोन आ गया. ठीक है, तो इतना भी एडवांस नहीं है ये. इट विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज पिक्स मच बेटर. अच्छा ये है माजिबीन इज सेइंग दैट इट ओनली रिकॉग्नाइजेस पिक्स ऑफ राइट साइड. लेट अस फाइंड द रीजन ऑफ दैट. दैट्स आर डिबगिंग स्किल्स. व्हाई इट्स ट्राइंग टू मेक इट फ्रॉम राइट साइड. ये भी अच्छी चीज़ है बताने वाली कि लेकिन नहीं, जब हमने इवन एमा वाटसन की थी तो वहाँ पे अननोन अननोन वहाँ पर आया था, एमा वाटसन पहले आया था. सो दैट मे बी समथिंग एल्स. आई एम गोना लुक इनटू दैट एंड देन वी गोना सी इट. ऑलराइट गाइस, सो अल्लाह हाफिज़. मेक सम फन ऑफ इट और उसको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. परसों जो हमने की थी क्लास इमेज क्लासिफिकेशन की, उसको भी देख लीजिएगा. कल वाली भी देख लीजिएगा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. वीडियोस हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड. इसकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह आज रात. एंड देन वी गोना परफॉर्म सम हैवी थिंग्स टुमारो. कल एक हैवी थिंग है, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे. वी आर हैविंग जस्ट 3 वर्कशॉप अहेड आई गेस, 28, 29, 30. यस. ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.